this plastic bottle, it takes around 100 years to decompose. So आज I'm going to be a rag picker. I have Yunus with me. Assalamu alaikum Yunus. Yunus, थोड़ा करीबा. Yunus, एज क्या है तुम्हारी? 22 Is 22 years old and कितने साल से पिक कर रहे हो तुम rag? मतलब ये कर. He's picking this from almost 5 years. The only difference between him and us is that we go college and every day he comes here around 7 a.m. until 10 a.m. and he picks all of this. ज़रा करीब आके दिखा. इसके क्या रेट्स मिलते हैं अपने को प्लास्टिक के कार्टून के? 12 रुपये ये प्लास्टिक है, 10 रुपये कार्टून है. 12 रुपये प्लास्टिक, 10 रुपये कार्टून. तुम दिन में कितने कमा लेते हैं? करीब 400-500. कभी ज़्यादा आ गए तो? ज़्यादा में ये ग्लास स्टील का क्या रेट है? 30 रुपये. 30 रुपये. ये you know there is this responsibility. Every person in a home is having a responsibility. You know where you dump and how you dump the waste. Because a lot of us we dump the waste in places where it is not required. So जो rag pickers है, you call them rag pickers. Like one of them is Yunus. We spoke to him right now. So these rag pickers, rag pickers basically it means that people who pick plastics and recyclable things from the solid waste and then they sell it for profit or they sell it for earning. तो ये इन्हें कर रहा, इसकी लिविंग के लिए कर रहा हूँगा ये, but this is impacting, it is creating a good impact on the society at the end of the day. तो हम लोग जो कर रहे हैं, it is creating a bad impact. As you can see कि मतलब आके हम लोग डंप करके चले आते, and then these people they come and they pick, you know, from early morning till evening and then they go and sell it scrap dealers के पास जाके इसको sell कर देते लोग. You know, like जैसे कि उन्हें बोला कि प्लास्टिक 12 रुपीज़ पर kg, तो उन्हें कलेक्ट करता है एक 15 kg के करीब समझो, तो 15 kg से क्या कमाते? You know, you cannot earn anything. So I was looking at him and I just had this realization कि, you know, कि it is not easy to make this video क्योंकि I'll be having a personal experience of picking rag myself, but this is just a journey. You know, I want it to be out there on YouTube. I want people to see this. कि you know, this is how difficult it is. कि you know, a lot of people at this time they're sleeping. और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कचरा कलेक्ट कर रहे हैं. Around 45% of youth in India they collect rag. म्यूनसिपैलिटी को हटा दो, बल्दिया के लोगों को हटा दो, बल्दिया की गाड़ी दिखा जा रही थी गाड़ी. So these people they collect for money, like they come to your homes and they collect, they are from the government. लेकिन यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे गर्ल्स हैं, they have no job security, they have no salary. You know, they are doing this just for a living. They're having 5 siblings, 6 siblings. They're doing this just for a living, and this video is basically spreading awareness for them. This video is showing कि you know कि कोई भी job छोटा या बड़ा नहीं है. अगर ये लोग नहीं रहते थे, so this would have been in multitudes. ये जो कचरा यहाँ पे दिख रहा, ये जो कचरा है यहाँ पे, this would have been in multitudes if these people did not exist. Today, as I told you, I'm going to be a rag picker. तो मैं यूनुस के साथ जाके I'll be picking some rag, learning some lessons, looking behind कि कैसा मतलब रैग पिक करते और इसके पीछे क्या क्या हार्डशिप्स है. ये भी जाता प्लास्टिक. और क्या इसमें प्लास्टिक, ये वो नहीं जाता. और कुछ है यूनुस? ये जाता है. बैटरी और कुछ? तो तुम हाथों से वो करते ना? हाथों में कुछ वो नहीं होता प्रॉब्लम? होता कभी कभी. इससे पहले तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कट गया मेरा. लुक एट हिज हैंड्स. ये हाथ का अगर मार पड़ा ना, सो जाता आदमी. पूरा यहाँ से यहाँ तक. ये वो नहीं जाता. So we are going to different spots and we are collecting what do you say, rag with him. We're collecting rag with him and then at the end of the day we'll see कि इसमें कितना rag collect होता. तो जो भी कलेक्ट होता है उसको तोल के देखेंगे, ये अपनी मेहनत का है. सो विल हैव एन एक्सपीरियंस के हाउ मच वी हैव कलेक्टेड एंड हाउ मच विल बी गेटिंग मनी फ्रॉम दिस. हम लोग गली गली जा रहे हैं. यू नो विल बी टेकिंग 3 to 4 spots until this is filled.
क्योंकि हम लोग द थिंग इज़ दैट आई एम फास्टिंग एंड इवन ही इज़ फास्टिंग, तो देर आर पीपल, ये फास्टिंग में रह के मैं ये कर रहा हूँ, बट देर आर पीपल हु डोंट हैव फूड, सो इफ़ दे सेल दिस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जो पैसे आते हैं लोग उससे खाना खाते, तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये तो एक एक्सक्यूज़ है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, बट दीज पीपल दे फास्ट एवरी डे, और जो पैसे बेच के लोगों को मिलते हैं फ्रॉम दैट दे बाय फूड। लेट्स गो एंड चेक। कोने में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आ रहे थे। ये वो नहीं चलते, नहीं जाता, वहाँ एक बोतल है वहाँ। 1 मिनट रुको, मैं जाता हूँ। वहाँ एक बॉटल है, और यहाँ पे एक थैली है, देखो थैला है ये कुछ, वाह, डिस्ट्रॉयड। स्पॉट 3 पे हम लोग, लुक समथिंग लाइक दिस। यूनुस देखो कुछ मिल रहा क्या? शीश, क्या हाल है रे भाई? कुछ भी नहीं है, कुछ बॉटल वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। निकालिए। और एक चीज़ मिली प्लास्टिक की, चल भाग अब। ते पकड़। बॉटल्स प्लास्टिक। पैसा पैसा पैसा। शे, तुम ऐसा चुनते हो तुम? और क्या देखो, दैट्स इट, ओके। हाल बेहाल है यहाँ पे। मैं रिसर्च जब कर रहा था इस पर रैक पिकर्स पे, आई फाउंड आउट के यू नो देयर वाज दिस सर्वे डन बाय द गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कि बाय 2050 इंडिया वुड बी जनरेटिंग अराउंड 450 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो इमेजिन करो, गलियों में इतने प्लास्टिक से कहाँ नहीं होंगे प्लास्टिक्स, एंड इट टेक्स अराउंड 100 years. I told this in the starting of the video that it takes around 100 years for plastic to decompose. तो look at this plastic, खाली प्लास्टिक आते जा रहे, प्लास्टिक ख़त्म नहीं हो रहा यहाँ पे। ऐसा अंदर भी देखते, मतलब कभी उठा है ऐसा जाके? मैं जाता हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस करना है ये वीडियो, बिकॉज आई एम रैक पिकर, मैं रैक पिकर हूँ आज। ओह शिट, ये प्लास्टिक है ना, ये कार्टून। एक सेकंड, मेरे को बहुत चीज़ें मिल रहा है यहाँ पे, इसको ज़रा खोलो, मेरे को नहीं आता खोलने। बॉटल, look at the way he's opening, look at the way he's opening. यहाँ पे खाली झुंड है, तो झुंड में वी गोना सी कि वो कितना प्लास्टिक हमको मिल सकता। यूनुस, मैं प्लास्टिक्स देते जा रहा हूँ, मैं लियो। ये प्लास्टिक नहीं है लेकिन फिर भी लियो, चलता वो नहीं चलता। ये लियो प्लास्टिक लियो। ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं लेकिन सर्व करना पड़ता है इस पर।
सर्फिंग करे तो कुछ मिलता अपने को, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं देखो यहाँ पे। कहाँ दिखा पीछे का? दैट इज़ वाई दे वेयर क्या बोलते हैं, ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े पहन के आते हैं लोग रैक उठाने। मतलब एक एक चीज़ अलग कर लेते हैं। अलग वो लोग खुद कर लेते, लेकिन तोल के पैसे दे देते स्पॉट पे। डैम, अगेन टाटा ग्लू को। कार्टून्स। सबसे ज़्यादा एक दिन में कितना कमाए तुम कभी? 500-600 कमाते बोले ना, सबसे ज़्यादा कितना कमाए? 1000। 1200 सबसे ज़्यादा। वो ग्लास का होना है। छोड़ छोड़ दो, ये मैं पकड़ लेता। ग्लास, दैट्स व्हाट। अंकल भी देख के, अंकल की शॉप है, अंकल ऑल्सो गेव अस सम कार्टून्स। यू नो, जब तक मैं खुद बाहर नहीं आऊँ, मैं खुद जाके एहसास ना करूँ, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलूँ हु आर यू नो हु आर कंट्रीब्यूटिंग इन इनडायरेक्टली बोल दो, कंट्रीब्यूट कर रहे सोसाइटी को। बिकॉज लुक एट द कंडीशन, गली है ये, गली में ऐसी हालत है। सो देयर आर पीपल हु कम एंड पिक, अनटिल अनलेस आई डोंट गो एंड मीट देम, मैं उनके साथ नहीं रहूँ, मेरे को एहसास नहीं होता सब चीज़ों की। एटलीस्ट अब तो मैं कचरा जहाँ मिले वहाँ नहीं फेंकूँगा मैं, एटलीस्ट ये करने के बाद, एटलीस्ट ये वीडियो का जो एक्सपीरियंस है इसके बाद। क्योंकि लुक एट, मैं ऐसा कभी मेरी लाइफ में नहीं करा मैं। यूनुस अभी अपन सामने जाएंगे, ज़रा चलते ही थोड़ा हाल बेहाल हो गया मेरा। तुम डेली कैसा करते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आया, इसको यहाँ रखेंगे, ये देख, इसको यहाँ पे रख रहे, आके इसको वापस लेंगे जब तक इसमें कलेक्ट करेंगे जो भी कर सकते हैं। क्या ये भी जाता पक्का? सेमट खोल लो। अच्छा ये निकाल लूँ कैस? शिट, अरे ये स्टील में आता ना ये? नहीं इसमें आता अच्छा मैं पकड़ लेता हूँ, मैंने छोड़ा, मैं पकड़ लेता हूँ। ज़्यादा है तो अलग करके देते हैं। I'm exhausted. टाइम क्या हो रहा है अभी? एक सेकेंड, लेट मी हैव 9:17 हो रहे एंड आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। वहाँ पे भी कुछ दिख रहा, वहाँ पे बॉटल्स है सामने। ओही, काम हो गया मेरा। ये शूज़ वगैरह नहीं जाते? नहीं जाते। कहाँ पे? मैं नहीं जा रहा अंदर। आई कैन नॉट जंप नाउ। हाँ, वाट लग गई अपनी। तुम ऐसा देख देख के मतलब कभी कभार निकालते हैं ऐसा भी? हाँ। कितना वो है ब्रो ये, माय गॉड। एक तो फास्ट करना, यू नो, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फास्ट एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू कीप कलेक्टिंग because you need at least 400 to 500 rupees. That is also not enough. He's having 5 siblings and then mother, father. I don't even know कि how is he surviving, and this he's just a single person. ऐसे कितने लोग हैं? Like how many people are there who are surviving? और कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे यूनुस। तो
As I told you, it's almost 9:30, and तकरीबन you know we have collected almost. I'm not able to show you guys. Full हो गया ये. So we planned कि me in Yunus we'll go back and give it to the scrap dealer, and I just want to see कि इसके कितने मिल रहे. We have this, एक स्टील का ये, and then कार्टून्स है हमारे पास, कार्टून्स. So we're going to see कि हम लोग कितना मिलेंगे इससे. यूनुस बॉस. ये जो भी सामान अभी हम लोग तुला है, क्या होता है इसका मतलब, क्या करते हैं आप लोग? ये कार्टून क्या है जो कंपनी को जाता है. हाँ. कंपनी में जाके बोलिए इसमें नहीं, इसमें बोलिए खाली. कंपनी को जाता है. कंपनी में क्या है मालूम है, भिगा के डाल के फिर कार्टून बनता, नवा फ्रेश कार्टून बनता. और जो प्लास्टिक के बोतलें वगैरह है उसका ये बॉटल का क्या है मालूम है, पहले फ्रेश होता. हाँ. फ्रेश होने के बाद में कंपनी को जाता, दिल्ली आगरा उधर बड़े बड़े फैक्ट्रियों को जाता. फैक्ट्री में क्या होता मालूम है, दाना बनता. दाना बन के फिर नए फ्रेशिंग होता नवा बॉटल में. मेरे को एक बहुत डीप सवाल है, मतलब एक सवाल है मेरे को कि यहाँ पे इसके जैसा कितने बच्चे आते हैं आपके पास, मतलब डेली इसमें बच्चे ही चाहते हैं या बड़े लोग भी आते हैं? ये लोग भी आते हैं. मेरे पास ज़्यादा है कि मैं दुकानों से माल लाता हूँ. अच्छा. ये फ्री वाले आए इन लोगों के भरोसे भी दुकान नहीं चला सकते हम. अब इन्हें मैं 8 दिन के बाद में एक बंदा आया. अब 8 दिन में इंतज़ार देख लेते बड़े तो नहीं होता. हम शॉप ऐसे शॉपों पे छोटे छोटे दुकानों से मैं ले गया तो मेरा गोदाम अंदर है. हाँ. क्या बोले हम डालते, अपने पास पेटेंट नहीं है. अच्छा अच्छा. पेटेंट नहीं. अपनी दुकान सुबह में 7 बजे खुल जाती. हाँ. अब उन्होंने क्या है, चलो सेठ दुकान जल्दी खुलता, पैसे जल्दी मिल जाते, घर को चले आएंगे बोल के वो हिसाब से अपने पास आते. समझे छोटे बच्चे भी आते, बड़े भी आते, बड़े ज़्यादा आते समझे. छोटे मतलब लोकल बच्चे कम रह के बाहर के बच्चे ज़्यादा ये काम करते हैं. अपने पास सिटी हैदराबाद सिटी के बच्चे नहीं. अपने बच्चों को खाली चबूतरे पे बैठना है, मंतखे मालत पे बैठना है, सिगरेट पीते हुए बैठना है. यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेहनत करते रहते. मजबूरी है लाइक ही इज़ ऑल्सो हैविंग यू नो ही इज़ हेल्पलेस. You know, his father is on bed, his mother, she works somewhere else. The moment he finishes this, we'll be giving a final tally के कितना हुआ. Mine is 35 rupees, so we'll be seeing के यूनुस का कितना हुआ. Segregation चल रहा अब. So he has to collect waste, stack it, and then segregate it. फिर यहाँ पे ला के डंप इट, सेग्रीगेट करना, कार्टून को सेपरेट सेग्रीगेट करना, बॉटल्स को सेपरेट सेग्रीगेट करना, एंड देन उसके रेट्स मालूम करना, पैसे लेके घर को जाना. Now we are basically now you know weighing the items that we have collected. कितना 16.8, and then I am also having something in my hand. After collecting all of this, we're getting 15 rupees because it is 10 rupees per kg. तो तुम्हारा कोई इस कार्टून से कितने मिलते हैं अंदाज़ा डेली के? 200 200 to 300 rupees he gets. Almost 1.5-2 hours we were collecting. We got this cartoon and you know we are getting 15 rupees. दे दीजिए आप मेरी मेहनत का हिसाब. ये भी तोल देंगे इसके साथ सेपरेट. प्लास्टिक का टाइम. ये प्लास्टिक कैसा है किलो? 10 रुपीज़. सेम रेट. थोड़ा सामने. We collected this for 1.5 hours and then we're getting 10 rupees for this. 10 rupees इसके लिए. रख दो. टोटल कितना हुआ हिसाब? 35 रुपीज़. तुम्हारा कर लेते 16 किलो का. 160 160 रुपीज़. मैं भी उठाता हूँ. ये प्लास्टिक बॉटल्स वी आर वेइंग. आराम से 18 किलो 450 ग्राम्स. उसके कितने?
35 plus 160. $575 कुल मिलाइए ना पूरा वो 35 भी मिला लीजिए इसमें 35 604 रुपीज़ इतनी मेहनत करने के बाद आज एक 35 रुपये ज़्यादा आ गए 600 5 रुपये शुक्रिया जाके आना भाई बहुत बहुत शुक्रिया इतना मुश्किल है इसको चलाना आई केम फ्रॉम ऑल द वे बैक एंड आई एम हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तुम डेली जाते आते ना तुम you know I'm trying to press the pedal press कर रहा हूँ it is going on the left side pedal press कर रहा हूँ it is going on the left side और ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं है इसको ब्रेक पड़ रहा नहीं and then he goes every day around 2 किलोमीटर होगा रास्ता 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा जाना आना रास्ता वही ना ऊपर चढ़ना नीचे उतरना कैसा ब्रो ये कितने में लिया साइकिल पुराना लिया 5,000 मेरी वाट लगी ब्रो अब कहाँ है तुम्हारा घर चलो जाएंगे वहाँ तक गाइस वी केम टू यूनिस's प्लेस ये यूनिस का घर है यहाँ पे शेड्स है इमिग्रेंट्स के लिए ऑलमोस्ट 3.5-4 किलोमीटर्स हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा आई वॉज राइडिंग यूनिस's व्हीकल और यूनिस को इस पर बिठा के लाए आई जस्ट वांट टू से कि मेकिंग दिस वीडियो जस्ट मेड मी रियलाइज कि हाउ ब्लेस्ड आई एम कि आई गॉट अ चांस टू एक्सपीरियंस दिस पहली बार मेरा शर्ट ऐसा फटा पीछे से फटा और हम लोग अंदर जाके देखे टेंट्स देखे इमिग्रेंट्स के टेंट्स आई जस्ट वांट टू से कि जब तक इंसान के पास कुछ चीज़ रहती उसका एहसास नहीं रहता जब वो चीज़ द मोमेंट द थिंग गोज़ अवे फ्रॉम हिम ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग और यही था बस आई बिकेम अ रैग पिकर फॉर अ डे 3-4 आवर्स का था ऑल्सो आई एम फास्टिंग मैं सोचा कि इवनिंग तक करूँगा बट द रीज़न दैट आई एम फास्टिंग सो वी ट्राई टू कीप इट जस्ट कीप इट लिमिटेड 3 to 4 आवर्स और नथिंग मैं बस यूनुस को शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ और आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हिम वट एवर आई कैन because at the end of the day I cannot help everyone while coming we met a small kid हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि हम लोग थोड़ा रश में थे we met a small kid he was rag picking इतना छोटा बच्चा था so the thing is that we cannot help everybody but if we can help a single person that's how we start तो ये वीडियो का एम यही था these people they came from Burma and they're residing over here and I just feel happy that I got a chance to spend a day with him go through how it is to be a rag picker. If you like the video, share karo, subscribe karo. I'll catch you guys in the next one. Peace.